Hello, everyone, and a very good morning. A very warm welcome from Expert Academy for this session known as Guidance for Articleship. So, without any delay, let me first introduce our guest for today, that is CA Preetham Mahure sir. CA Preetham Mahure sir is an globally acclaimed speaker, writer, and advisor on GST and VAT. And also, sir is well known for his future proofing strategies. Sir has authored more than 15 helpful books sharing practical tips on optimizing GST and VAT. Sir has also invited columnists for leading media houses like Business Line, Asian Age, Business Standard, Deccan Herald, and Economic Times. He has also addressed more than 200 conferences on GST, Gulf VAT in India, UAE, Oman, Bahrain, and Kuwait for ICAI, CII, NACIN, ASSOCHAM, NASSCOM, MCCIA, DCCIA, BCCI, etc. Expert Academy welcomes you, sir. Yes, thanks, Siddhi. Thanks. So, sir, let's start with a very basic question that what are the prerequisites or key preparations that students should make or you would suggest students to make before joining the articleship? Okay, so I would split it into two baskets. One before joining and second after joining. See, nowadays I would recommend to the student to go for one particular area in their articleship period. See, if you are going for audit, let's say you are going for stat audit or internal audit, or if you are going for income tax or GST, then in such decision when you take, you need to ensure that your basics are right. See, when I am conducting an interview of any student who is supposed to join a firm, that time I am also aware that the student is not having any practical knowledge. But as a senior, as a professional, as a chartered accountant, I always expect, and obviously everybody will expect, that the student should be having some basic knowledge about that particular topic. And that's the reason it is very important for all of you to gather as much as basic or theoretical knowledge of that topic. So that's the first step towards preparation. The second step, that is after you join a particular firm, I would say that you need to continue to be a student. That is, just be a student of that particular topic. Most of the time I have seen student joins a particular field, for example GST, and then just within 3 to 4 months, then he will say that I am gathering knowledge, now I have become an expert, now I want to shift to another field. But friends, please note, right now it has been more than 19 years that I am working in this particular field, that is GST or indirect taxes, and still I would say that I am a learner. So it is pretty unrealistic for all of you to assume that just within couple of months you are going to become an expert. So always be a student in the first 24 months of your articleship. That's what I would recommend to the student, that is, be a student during the course of articleship, and before you join a particular field, read as much as possible, maybe from your old notes or maybe from any new book which you would like to buy and read. Correct. Thank you, sir. Now I know that students would be clear before going to the articleship that what is the things that they need. Wonderful. Second question, I would say that how should student go with what approach? Should they generalize and keep a broader aspect during the articleship, or should they specialize in a particular role during the articleship? Okay, regarding generalization or specialization, I am aware that most of the students have a belief that they need to generalize, because उनके माइंड में रहता है कि सर पहले मैं 2 साल में सभी फील्ड का एक फेयर एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, सो दैट आफ्टर आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन डिसाइड विच एरिया आई शुड गेट इनटू. बट फ्रेंड्स, प्लीज नोट, मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आर्टिकलशिप इज नॉट अ थाली. यानी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम शादी में जाते हैं या थाली ऑप्शन जहाँ रहता है वहां पर सभी चीजें आपको सर्व की जाती है, आप टेस्ट करते हो और फिर कौन सा पसंद आता है उसको आप रिपीट करते हो. तो आर्टिकलशिप इज नॉट अ थाली. It's an experience wherein you need to develop one core skill, that is, you need to know about that field end to end, so that you can decide in future which area you would love to work into or which area you want to leave. So to give an example, if you are a farmer and if you have 2 acres of the land, then now the decision is which fruit you would like to plant, not vegetable, because vegetable तो 15-20 दिन में आएगा और आप बेच सकते हो, बट आपको फ्रूट का ट्री लगाना है सो दैट 2 साल के बाद आपको फ्रूट मिले. सो यहाँ पर ये डिसीजन नहीं हो सकता
कि 3 महीना में कोकोनट का ट्री लगाता हूँ, फिर नहीं कोकोनट नहीं लगेगा मुझे अच्छा तो मैं निकाल देता हूँ, फिर मैंगो ट्री लगाता हूँ, फिर वो नहीं चल रहा है तो फिर मैं द्राक्ष का लगाता हूँ, फिर वो नहीं लग रहा है तो एप्पल का लगाता हूँ। तो आर्टिकलशिप ऐसा 3-3, 4-4 महीने में अलग अलग फील्ड में आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर लर्निंग अबाउट अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, नर्चरिंग अ ट्री, मॉनिटरिंग दैट ट्री, फर्टिलाइजिंग या जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूजिंग दैट ऑन द ट्री, एंड देन फाइनली यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट अच्छा भी ट्री को फ्रूट्स भी लगते हैं, बराबर है। तो ये जो पूरे प्रोसेस से आप गुजरोगे ना तो ही आपको पता चलेगा कि भैया कौन सा फील्ड मेरे लिए बेटर है। तो ये प्रोसेस से गुजरना जरूरी है। इसके लिए मल्टीपल चीजें एक फील्ड में मल्टीपल फील्ड में मत ट्राई करो। इवन एज आई स्पीक टुडे ऑल ऑफ यू एग्री दैट अभी लॉयर जो अपने को प्रोफेशनल है यानी कि हमारे जैसे प्रोफेशनल है, वो भी आप देखो आज स्पेशलाइज करते हैं। लॉयर्स डोंट जनरलाइज, बिकॉज आपके पास आईपीआर का लॉयर रहेगा, फैमिली का रहेगा, क्रिमिनल प्रैक्टिस वाला कोई रहेगा। सिमिलरली जब स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करते हैं, ऑल ऑफ अस नो स्पोर्ट्स पर्सन को हम प्रो बोलते हैं, प्रो यानी प्रोफेशनल। अगर आपको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आप ऐसा करोगे क्या कि 3 महीना में फुटबॉल खेलेगा, 3 महीना में हॉकी खेलेगा, 3 महीना में स्विमिंग करेगा, मे बी समर में मुझे स्विमिंग पसंद है, ठंडी में मैं स्विमिंग नहीं करेगा, उस टाइम पे रनिंग करेगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको प्रो बनना है देन यू नीड टू चूज वन पर्टिकुलर स्पोर्ट एंड देन यू कैन शाइन इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। यू नो MS धोनी एज एग्जाम्पल, जिन्होंने एक स्पोर्ट को लिया, बराबर है, पहले हो सकता है उन्होंने फुटबॉल को लिया, लेकिन बाद में उनको जब पता चला कि आई हैव अ बेटर चांस और प्रोस्पेक्ट इन क्रिकेट देन ही शिफ्टेड टू क्रिकेट। तो इसका मतलब ये भी है जब आप एक फील्ड को आपका पूरा टाइम देते हो तो ये पॉसिबल है कि आप शिफ्ट भी कर सकते हो हर एक फील्ड में, बराबर है, और उसमें शाइन कर सकते हो। इसके लिए ये बहुत जरूरी है दैट यू नीड टू लर्न वन पर्टिकुलर और यू नीड टू लर्न अबाउट वन पर्टिकुलर फील्ड इन और ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप रादर देन ट्राइंग फॉर मल्टीपल फील्ड्स, बिकॉज 2 साल बहुत ही कम टाइम पीरियड है। प्लस मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ एज अ प्रोफेशनल कि 2 साल है ना 24 मंथ्स को आपने 3 बास्केट में स्प्लिट करना चाहिए, 8 मंथ्स ईच। फर्स्ट 8 मंथ यू नीड टू बिकम द बेस्ट लर्नर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। देन 8 मंथ, नेक्स्ट 8 मंथ यू बी अ गुड एग्जीक्यूटर, यानी कि जो भी सीनियर ने आपको काम दिया तो उसने भूल जाना चाहिए कि आपको क्या काम दिया है, एंड यू शुड बी एबल टू आंसर और एग्जीक्यूट दैट असाइनमेंट वेल। एंड थर्ड, यू नीड टू बिकम अ गुड लीडर। तो लास्ट वाला 8 मंथ में यू बिकम अ गुड लीडर, यू ट्राई टू ट्रेन अदर्स, यू गाइड अदर्स, and that is how your articleship phase should be, into 3 basket: learner first, then better executor, and then be a leader. And that is only possible if you are doing articleship in one particular field rather than going for multiple fields. Thank you, sir. So next, I would say many students in our academy as well come from rural areas. So how would they select a city for the articleship? Like, should they do it in their own towns or should they move to cities like Mumbai or Pune for the articleship? What is Okay. your suggestion? See, अभी मैं आता हूँ परभनी से, जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, स्मॉलर सिटी है एज कम्पेयर टू पुणे। तो गोज विदाउट सेइंग दैट अगर आपके पास चॉइस है, ऑप्शन अवेलेबल है, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, देन ऑलवेज गो फॉर अ बिगर सिटी। अगर आप से परभनी में हो, आपके पास इतना फाइनेंशियल मसल नहीं है आपके फैमिली के पास अनफॉर्चुनेटली, देन ट्राई टू शिफ्ट टू मे बी औरंगाबाद। अगर पॉसिबल है तो पूना, बराबर है। एंड अगर पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल मसल ही नहीं है, देन ऑब्वियसली यू कैन कंटिन्यू टू बी इन द स्मॉलर सिटी आल्सो, दैट इज आल्सो टोटली फाइन। एंड वर्चुअली जितना पॉसिबल है अलग अलग कोर्सेज करके, यूट्यूब से वगैरह या अलग अलग प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करके, कपल ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार पूना में अटेंड करके आप नॉलेज गैदर कर सकते हो। सो दैट इज आल्सो ऑप्शन यू कैन चूज। बट अगर चॉइस अवेलेबल है, फाइनेंशियल कोई कंडीशन या कंस्ट्रेंट नहीं है, देन आई थिंक दे शुड गो फॉर अ बिगर सिटी, बिकॉज वहां पर ऑटोमेटिकली कैनवस बिगर हो जाता है, क्लाइंट बिगर हो जाते हैं, कनेक्ट्स बिगर हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ भी बड़ा होने का चांस या पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड टिपिकली एक और चीज़ रहता है, कोई भी अपना जो होम टाउन रहता है वहाँ पर एक अपना खुद का कंफर्ट जोन रहता है, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह वो सब। अगर आपको एकदम एक्सेप्शनल ग्रोथ चाहिए, यानी कि अगर आप हैप्पी नहीं हो एपी ग्रोथ से, अगर आपको जीपी ग्रोथ चाहिए, एपी ग्रोथ यानी 1 2 3 4 5 6 यानी कि 100 तक जाना है तो मुझे 100 स्टेप्स लेना पड़ेगा। लेकिन जीपी ग्रोथ में 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 यानी कि 8th स्टेप पे आप 100 क्रॉस कर लोगे। तो अगर आपको जीपी ग्रोथ चाहिए देन सर्टनली
coming to a bigger city will certainly help you go for a GP growth. Sir, the next question is the most asked question from all the students, I think, that which type of firm should they join? A small firm, medium-sized, or from the big fours? So what would you say? Okay. तो बहुत बार बच्चे लोग ये दो बास्केट करते हैं, एक तो कहते हैं कि स्मॉल फर्म और दूसरा बोलते हैं बिग फोर्स. तो यहाँ पर मैं बच्चों को बोलता हूँ, डोंट गो फॉर अ स्मॉल फर्म, डोंट गो फॉर अ बिग फोर, रादर गो फॉर समथिंग इन बिटवीन, जो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है जिससे आपको अर्ली सक्सेस मिल सकता है आपके करियर में. और वो कौन सा है? गोइंग फॉर अ बुटीक फर्म. बुटीक फर्म कौन सा आता है? जो एक ही पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज कर रहा है. फॉर एग्जांपल कोई फर्म होता है जो सिर्फ इनकम टैक्स में काम करता है, कोई फर्म होता है जो सिर्फ जीएसटी में काम करता है. तो जब ऐसे कोई स्पेशलाइज फर्म में आप जाते हो ना, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा. आप कहोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, बड़ी फर्म में ज्यादा सीखने को मिलेगा ना? तो आई विल शेयर विथ यू व्हाई यू कैन लर्न मोर इन अ बुटीक फर्म. उसका रीजन ये है कि इन अ लार्जर फर्म, फॉर एग्जांपल बिग फोर्स में, बिकॉज आई हैव आल्सो वर्कड इन अ बिग फोर फॉर मोर देन 3 years, so typically in a big four or large firm they have a hierarchy in place. So there is a senior partner, then there is a partner, then there is a director, then there is a associate director, then there is a senior manager, then there is a manager, then there is a assistant manager, then there is a executive, then there is article year 3, article year 2, article year 1, and then you are joining. तो आप वहां पर एकदम लास्ट हायरार्की में एकदम लास्ट पर्सन रहने वाले हो. सो इट इज वेरी अनलाइकली और वेरी लेस लाइकली और वेरी इनफ्रीक्वेंटली यू वुड बी इंटरेक्टिंग विद द सीनियर मोस्ट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फर्म. तो नेचुरली अगर आपको सीखना बहुत ज्यादा है, इट इज बेटर दैट यू शुड ज्वाइन अ फर्म जहां पर इतना बड़ा हायरार्की नहीं है एंड आपको टॉप मोस्ट पर्सन के साथ ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले काम करने का और सीखने का. बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड इन अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, जबकि थियोरेटिकल वर्ड में हम पढ़ के रीड करके, बराबर है, बेस्ट फैकल्टी से में भी हो सकता है कि जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कोचिंग करें तो वहां से किसी से सुन के हम सीखते हैं. लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स. तो इसके लिए इट इज मच बेटर दैट यू शुड ज्वाइन अ बुटीक फर्म जहां पर आपको डायरेक्ट एक्सेस रहेगा सीनियर से, तो वहां पर ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा. एडिशनली मैं कहता हूँ कि अगर आपको तेंदुलकर बनना है तो आपको आपका आचरेकर ढूंढना पड़ेगा. बराबर. आचरेकर जी कौन थे? तेंदुलकर जी के गुरु थे. तो अगर आपको एक बुटीक फर्म में ज्वाइन करने के बाद अगर आपके आचरेकर मिल गए तो एट द अर्लीस्ट आप तेंदुलकर बन सकते हो. ये पॉसिबिलिटी है. और एडिशनली मैं ये भी बोलता हूँ बच्चों को कि बहुत बार हम बिग फोर्स के बारे में जब बात करते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट दैट देयर इज अ बिग फोर्स विद इन अस आल्सो, FORCE. दैट इज हाउ आई स्पेल बिग फोर्स. सो देयर इज अ बिग फोर्स विद इन अस आल्सो व्हिच वी टेंड टू फॉरगेट. तो अगर आप एकदम एक ही एस्पिरेशन अगर आप रखोगे कि मुझे बिग फोर्स में जाना है, तो दिस एस्पिरेशन विल रादर किल योर इंटरनल एस्पिरेशन टू बी अ ब्रांड, बिकॉज यू आर सो मच ग्लूड टू ज्वाइन अ बिग ब्रांड. बराबर है. सो ऑलवेज कीप दैट एस्पिरेशन अलाइव. देन एडिशनली मैं ये भी बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आपको सही में मास्टर शेफ बनना है तो आपको ऐसे जगह जाना पड़ेगा जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे कपल ऑफ चीजों का, रादर देन ऐसी जगह जहां पर आपको स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ प्रैक्टिसेस है जो आपको फॉलो करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप मैकडी में जाओगे, सबवे में जाओगे, तो वहां पर अगर उन्होंने बोला है 7 ग्राम सॉस डालना है तो 7 ही ग्राम सॉस डालना है, एज सिंपल एज दैट. वहां पर स्टैंडर्ड SOPs है जो आपको कंपल्सरीली फॉलो करने हैं. लेकिन उसकी जगह अगर आपको मास्टर शेफ बनना है, इफ यू गो फॉर अ बुटीक होटल, वहां पर आपको बहुत सीखने को मिलेगा. बिकॉज वहां पर आपको प्रमोट किया जाएगा. आपको पॉसिबिलिटी है कि आप नया प्रोडक्ट बना सकते हो, नया डिश बना सकते हो, नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. एंड हर इंडिविजुअल को सक्सेस या हैप्पीनेस तभी मिलता है व्हेन इज एबल टू क्रिएट समथिंग. इफ यू ओनली फॉलो इंस्ट्रक्शन, if you only follow SOPs which are built, if you cannot question the SOPs, then to that extent I think उसका उस इंडिविजुअल का फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं हो पाता है. सो गो फॉर अ प्लेस जहां पर आप SOP बना पाओगे, नए एक्सपेरिमेंट कर पाओगे. बराबर. एंड दैट द रीजन बुटीक फर्म कैन बी द बेस्ट प्लेस फॉर मेनी स्टूडेंट टू लर्न एट द अर्लीस्ट. Correct. So for the reason that students should outshine, they shouldn't go to a firm that is already very much outshining. So Wonderful. their shine will be lowered. Yes, is very what true. I get from it. एकदम एकदम बराबर. उसी को मैं और एक वे से पुट करूंगा. बड़ी फिल्म में एकदम छोटा रोल यानी कि एक बैकग्राउंड डांसर का करने से अच्छा है छोटी फिल्म में बड़ा रोल करो. Correct. Be a एज सिंपल एज. हाँ, तो आपको ज्यादा ये चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा. दैट इज.
सर मैनी टाइम्स ऐसे ऑब्जर्व होता है लाइक स्टूडेंट्स गो टू देयर रिलेटिव्स फर्म्स और नोन पर्सन्स फर्म्स फॉर द आर्टिकलशिप Yes, कि yes. आराम से हम लोग कर Comfort, ले ये yes. थॉट के साथ. Correct. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मैं सर्टनली रिकमेंड करूंगा कि आपका जो भी भाई बहन रिलेटिव मामा काका अंकल जो भी है इनके पास इन जनरल द फर्स्ट प्रिंसिपल इज यू शुड नेवर एवर डू आर्टिकलशिप विद देम विद ड्यू रिस्पेक्ट. उनको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ ऑब्वियसली उनका भी फर्म है, उनके भी प्रोसेसेस रहेंगे, लेकिन हर इंडिविजुअल को ना एक कंफर्ट रहता है कि अरे मैंने एरर भी कर दिया ना तो घर का फर्म है या मामा काका नाना वगैरह जो भी रहेगा. प्लस जो उसके सीनियर रहेंगे उनको भी पता है यार इनका फैमिली का ये है तो मैं उसको डांट दूंगा तो भी ज़रा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसके लिए कोई सीनियर भी उतना एग्रेसिवली आपको कभी फीडबैक देगा नहीं या पॉजिटिवली भी देगा नहीं. तो इसके लिए मेरा तो कभी भी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहता है कि ऑलवेज गो टू अ अननोन प्लेस जहाँ पर यू कैन मेक योर मार्क एंड एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट करके आप इमर्ज कर सकते हो रादर देन डिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, डिपेंडेंट ऑन योर रिलेटिव्स. तो इसके लिए ये बेटर है दैट यू शुड गो फॉर ए इंडिपेंडेंट फर्म रादर देन अ फर्म वेयर यू विल बिकम फर्दर डिपेंडेंट ऑन द फैमिली. Correct. Thank you, sir. Sir, how important is it for the students to think about the stipend amount? अच्छा, तो स्टाइपेंड यस आजकल तो हर किसी को, नाउ वी लिव इन अ मनी डोमिनेटेड वर्ल्ड, तो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, हर किसी को. रादर अभी तो हर किसी का सक्सेस या फेल्यूर हम पैसे कितना कमा रहा है उसी से जज करते हैं. सो टू दैट एक्सटेंट अभी हम मनी ड्रिवन वर्ल्ड में रह रहे, तो बच्चों का इंक्लिनेशन होना कि मुझे ज़्यादा स्टाइपेंड मिलना चाहिए ये बराबर है. लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि जब मेक और ब्रेक यानी जब डिसीजन मेकिंग की बात आ जाएगी, आई विल गिव यू टू चॉइसेस. वन, एक फर्म है जहां पर आपको प्रोसीजरल काम मिलने वाला है, एक फर्म यहाँ पर आपको तोड़ जबरदस्त काम मिलने वाला है, क्वालिटी का बराबर है, क्वालिटी अच्छा है, सीनियर्स के साथ बैठने के लिए मिलने वाला है, बड़े क्लाइंट्स मिलने वाले हैं. तो इन सच सिचुएशन अनलेस एंड अनटिल फाइनेंशियली आपका फैमिली बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में है, आपका फैमिली आपको पैसे सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसे टाइम में आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर अ फर्म विच विल गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटीज रादर देन बेटर मनी. बिकॉज मैं कहता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल यू शुड ऑलवेज इन द इनिशियल डेज यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग. जितना लर्निंग करोगे ऑटोमेटिकली लर्निंग का एल डिलीट हो जाता है. लर्निंग के वर्ड से एल डिलीट हो जाता है, नेचुरली अर्निंग आपका चालू हो जाएगा. टू दैट एक्सटेंट फोकस ऑन लर्निंग rather than earning in the initial days unless and until as I mentioned फाइनेंशियली आपके घर में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं. तो अगर आप फाइनेंशियली तो आपको कोई वरी नहीं है, पिताजी मम्मी आपके वगैरह पैसे कमाते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर ध्यान दो. जिस फर्म में बेस्ट लर्निंग मिलेगा उस फर्म में जाओ रादर देन जहाँ पर बेस्ट अर्निंग मिलेगा. Sir, as we know, after completing CA, like students would go either for a job or they will practice on their own or they can start their own business. बराबर. So how they can choose a firm according to these needs, like what they have to do in future? ओके, वेरी वेरी राइट क्वेश्चन. और बहुत बार बच्चों का डिसीजन मेकिंग बिना इसी एंगल से चलता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है इसके लिए मैं एक स्मॉल फर्म में जाता हूँ, सर मुझे जॉब करना है इसके लिए मैं बड़ी फर्म में जाता हूँ. तो यहाँ पर मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सी इट इज़ अ बिट अर्ली फॉर यू टू डिसाइड कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, बराबर है. प्लस एक इन जनरल एग्जाम्पल यानी कि एक लड़का लड़की है, उनकी शादी हुई नहीं, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है. बहुत आगे की सोच हो गई वो, बराबर है. तो इसके लिए पहला वन स्टेप एट अ टाइम आप सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा जो डिसीजन है वो एक फैक्टर पे रखो कि कहाँ पर कौन से फर्म में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल मिल सकते हैं. बिकॉज जितना स्किल ज़्यादा मिलेंगे उतना आप एज ए इंडिविजुअल राइज करोगे. फिर 2 साल के बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, 2.5-3 साल के बाद, उस टाइम में आपके पास सभी ऑप्शन ओपन रहेंगे. यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस, यू कैन ज्वाइन अ फर्म, यू कैन डू अ जॉब इन अ फर्म, यू कैन ज्वाइन अ कंपनी, आप बिजनेस चालू कर पाओगे, आप कोचिंग में आ सकते हो, आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास स्किल आना जरूरी है. इसके लिए आप ये मत फोकस करो कि 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद जब मैं सीए बन जाऊंगा तो मुझे क्या करना है. आप ये फोकस करो कि मुझे कौन से फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल मिलने वाले हो. बिकॉज एक बार स्किल आ गए आपके पास तो आपका चॉइस रहेगा ना 2 साल के बाद कि मुझे इस स्किल को कहाँ यूटिलाइज करना है, बराबर है. दैट वे सो फोकस ऑन स्किल एक्विजिशन रादर देन टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मुझे बाद में क्या करना है. Sir, relating to this only, the next question was कि should the students be focusing on their skill or more on the brand name?
of the firm. अच्छा, तो नहीं, certainly goes as you rightly mentioned skill या brand name, तो यहाँ पर certainly it goes without saying कि अपने स्किल के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, बिकॉज जो पर्सन इनिशियल ईयर्स में आर्टिकलशिप में या उसके बाद में एक बड़े फर्म में या बड़े प्लेस में जब जॉब करते हैं, आप देखो कभी भी जब वो फर्म छोड़ भी देते हैं आर्टिकलशिप के बाद, वो जरूर लिखते हैं एक्स ABC XPQR करके। आप बताइए, आप आपके एक्स का नाम खुद के साथ जोड़ना चाहोगे क्या छोड़ने के बाद? सर्टनली नो। तो इफ यू आफ्टर लिविंग आल्सो इफ यू आर मैंडेटरली writing about the ex's name, that means what, you have become further dependent on your ex. And plus आप ये भी देखो, जो बड़ा फॉर्म है वो लिखता है क्या एक्स रमेश, एक्स सुरेश, जो उनके शायद बड़े पार्टनर वो छोड़ के चले गए, तो लिखते हैं क्या? सर्टेनली नो। That's the reason it is more important for you to acquire skills and become a brand in your own self rather than becoming dependent on some other brand. Sir, what according to you is the most important factors that students should have while going for the interview for the articleship? ओके, तो इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हो तो मैं कहता हूँ कि कपल ऑफ जस्ट बेसिक चीज़ों का आपने ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली यू नीड टू ड्रेस वेल, अगर आप गाय है तो शेव वेल, बी प्रेजेंटेबल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जहाँ पर भी जो भी फर्म में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंश्योर करिएगा कि आप उस फर्म को लिटरली स्टॉक करेंगे ऑनलाइन जाके, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में हर फर्म अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखता है, इवन उनके आर्टिकल भी उस फर्म के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो इंस्टा हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, फेसबुक हो सकता है। तो जिस पार्टनर के पास आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हो उनके बारे में भी सर्च करो। तो जितना गैदर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन उतना करो। आपके पास लिमिटेड टाइम है तो जस्ट गूगल करो ना उस फर्म के बारे में, नाम देखो, वीडियोस देखो, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर दिस फर्म इज गोइंग। इनके डिजिटल फुटप्रिंट से भी आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी। प्लस अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपको पता रहेगा कि उस फर्म के करंट और पास्ट मेंबर कौन से हैं, तो उनके साथ इंटरेक्ट करो, सो दैट दोज पीपल विल आल्सो टेल यू कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दैट फर्म एंड व्हाट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट दैट फर्म। तो जितना आप नॉलेज गैदर करके जाओगे ना उस फर्म के बारे में बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यू, इट वुड बी बेटर फॉर यू। और उसका रीजन क्या है, जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा एंड हो सकता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, या इंटरव्यू के एंड में टिपिकली एचआर या उस फर्म का पार्टनर आपको पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क अस, तो वहां पर आप प्रिसाइजली जो भी आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप पूछ सकते हो। बराबर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट द रीजन इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू शुड थिंक अबाउट कि वो कौन सा फर्म में जा रहे हो, तो उसके बारे में रीड करो, ड्रेस वेल, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी कोर आपका एरिया है जिस फर्म में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जीएसटी का उनका प्रैक्टिस है, इनकम टैक्स का प्रैक्टिस है, तो जो भी आपके एकेडमिक बुक्स है उसको प्रॉपरली रीड करके जाओ, पढ़ के जाओ, नोट्स वगैरह, उस फील्ड में कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है क्या वो भी देख के जाओ, बिकॉज उनके जो क्वेश्चन रहेंगे वो उसी अराउंड रहने वाले हैं। दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। Sir, one question I would like to add is that as we discussed, many students come from a rural area. So what about their confidence? Like it's low many times because they are not that good with English, or they think that they can't face the interview. So what is the tip that you would give them? See, it is but natural. ये कॉन्फिडेंस जो लो रहता है वो, इवन आई कम फ्रॉम, वैसे तो पहले मैं माहौर यानी माहौरगढ़ से हूँ, विदर्भ में जो आता है, और उसके बाद हम परभनी शिफ्ट हुए थे जो मराठवाड़ा एरिया में आता है। आई ऑल्सो कम फ्रॉम लाइक से रूरल एरिया ओनली टू दैट एक्सटेंट, प्लस वर्नाकुलर मीडियम, यानी कि अप टू 12th मेरा पूरा एजुकेशन मराठी में हुआ है। सो टू दैट एक्सटेंट मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता था इनिशियल डेज में। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सर्टनली जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, जितना आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उतना पढ़ के जाओ। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब इंटरनली यू नो यू आर डूइंग जस्टिस टू दैट इंटरव्यू। जस्टिस यानी यू शुड बी कंफर्टेबल अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। वो तभी होगा जब आप रीड करोगे तो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आएगा। और ये तो गिवन है कि आप तक आज तक बच्चों ने सिर्फ रीडिंग किया है उस फील्ड के बारे में, यानी कि देयर आर 2 सेपरेट थिंग्स, वन रीडिंग अबाउट स्विमिंग एंड सेकंड इज एक्चुअली डूइंग स्विमिंग। तो जब तक आप एक्चुअल डूइंग स्विमिंग, यानी कि जब तक आप एक्चुअल आर्टिकलशिप नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, बिकॉज अभी तक आपने सिर्फ रीड किया है स्विमिंग के बारे में। तो आर्टिकलशिप जब ज्वाइन करोगे, धीरे धीरे उस टॉपिक का प्रैक्टिकल आपको नॉलेज आता जाएगा, देन यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल। तो नॉलेज की वजह से कॉन्फिडेंस कम है, दोनों टाइप का, थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल। जैसे जैसे वो आते जाएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होते जाएगा। एंड अगेन
ये टोटली नेचुरल है कि आपके पास कॉन्फिडेंस कम है, तो बिकॉज बहुत बार लोगों को लगता है और वो देखो कितना कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहा है और मैं नहीं हूँ करके, तो ये टोटली फाइन है। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि भैया मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको पता चल गया है, so that means you need to work on that particular area. That means you need to gather as much as knowledge as possible. So knowing that you have low confidence, knowing that you are not that confident as compared to other people, that is totally fine. That thing should tell you, it should push you to work harder. That's it. तो वो अगर आप पॉजिटिवली यूज करोगे तो लाइफ में सर्टनली आप ग्रो करोगे, बिकॉज हर किसी के पास डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे हमारा मराठी मीडियम बैकग्राउंड था, मैं भी कभी लाइफ में बात नहीं करता था, स्पीकिंग के स्किल नहीं थे, तो ये सब डिसएडवांटेजेस है, लेकिन ये सब डिसएडवांटेजेस को आप एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट बाय वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड और एरिया। तो ये टोटली पॉसिबल है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका बर्तन खाली है, दैट मीन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन फुल दैट, यार वो फिल कर सकते हो वो बर्तन को। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू become better. Thank you, sir. Sir, coming to the end, let me know what, like from your experience, what are the mistakes that student make the most during the articleship or during the student period? अच्छा, तो मुझे जो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सो मेनी स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्टिकलशिप एंड कपल ऑफ स्टूडेंट अभी सीए बन गए हैं, सो दे आर वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड। आवर स्टूडेंट लाइक से समबडी इज वर्किंग इन लाइक से दुबई, समबडी यूके, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूएस में है, तो अलग अलग कंट्री में अभी हमारे आर्टिकल्स काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हर कोई या तो आउटसाइड जाके शाइन नहीं कर रहा है या तो इंडिया में रह के भी शाइन नहीं कर रहा है, बट देयर आर कपल ऑफ स्टूडेंट जो शाइन कर पा रहे हैं। तो जब मैं कंपेयर करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या वो खासियत थी, कौन सी स्पेशलिटी थी उस बच्चे में कि जिसकी वजह से ये बंदा शाइन कर पा रहा है एट द अर्ली स्टेज ऑफ हिज करियर। तो वहां पर मैंने 2-3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें देखी है। दैट इज द फर्स्ट इज बेसिकली जो स्टूडेंट आज शाइन कर रहा है वो आर्टिकलशिप डेज में प्रोएक्टिव था। प्रोएक्टिव यानी उसको कभी बोलने की जरूरत नहीं थी कि तू टाइम पे आ, कभी बोलने की जरूरत नहीं थी कि ये चीज तू पढ़ करके, कभी कोई फॉलोअप करने की जरूरत नहीं थी। एक बार उसको काम दे दिया तो मुझे भूल जाना है, दैट वे। तो वो एक्सट्रीमली प्रोएक्टिव स्टूडेंट जो रहते हैं ना आर्टिकलशिप डेज में, वो नेचुरली मैं देखा बहुत जाके आगे शाइन करते हैं। दैट द फर्स्ट स्किल सेट वन इज टू हैव टू बिकम द बेस्ट आर्टिकल पॉसिबल, दैट इज बी प्रोएक्टिव। सेकंड, ऑलवेज ट्राई टू शेयर योर फीडबैक विथ योर सीनियर इन अ पॉजिटिव मैनर, यानी ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट ऑल द टाइम। हो सकता है आपका सीनियर कोई पीपीटी या प्रेजेंटेशन बना रहा है, तो सर आपने ये 3 चीजें कंसीडर की, लेकिन उसमें एक चौथा चीज आ सकता है क्या? सर आज का आपका सेशन अच्छा था, मैंने अटेंड किया, लेकिन सर ये भी हम बात कर सकते थे क्या? एंड पूछना है आपको। सर बोलेंगे अरे नहीं ये गलत है, तू जो बोल रहा है ना ये जरूरी नहीं, बिकॉज ये लेक्चर इनके लिए था, ये ऑलरेडी नॉलेजेबल थे। बट ये चीजें पुट करना, प्रॉपरली पुट करना, सो दैट द सीनियर इज एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स यू कि फॉर द फीडबैक ऑल्सो, दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग जो मैंने देखा जो सक्सेसफुल बच्चे हैं उनमें दे विल ओन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। जो भी काम दो, जो भी असाइनमेंट दो, दे विल ओन, दे विल डू इट एंड टू एंड। यानी कि वो बच्चा बोलेगा कि सर मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए इस चीज का, मैं लीड करूंगा। आप ऑब्वियसली मैं कहीं पर गलत हुआ कुछ हुआ तो मुझे फीडबैक दो, बताओ, लेकिन मैं लीड करूंगा। दे वांट टू ओन दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपको बेस्ट आर्टिकल बनना है। तो फर्स्ट, बी प्रोएक्टिव। सेकंड, रीड एज मच एज पॉसिबल एंड नोबडी शुड बी एबल टू फॉलो विथ यू। एंड थर्ड, जैसे मैंने कहा कि ओन दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, यानी कि एक बार किसी सीनियर ने दे दिया तो उसने भूल जाना चाहिए ये मेरे को परफेक्ट रिजल्ट लाके ही देगा करके। तो ये 3 चीजें आप याद रखो तो सर्टेनली यू विल गो ऑन टू बिकम द बेस्ट पॉसिबल आर्टिकल। So one question, like before the articleship period, like before the last amendment, the articleship period was of 3 years and now it has come to 2 years. Yes. So how do you think, does it benefit the students or it is not good for them? सर्टनली अभी मैं तो ओल्ड स्कूल से आता हूँ जहाँ पर हमारे पास 3 साल का आर्टिकलशिप का टाइम था, तो मुझे लगता है कि 3 साल वॉज फेयरली गुड अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत मिलता था थोड़ा, बिकॉज सी नॉट एवरी किड इज वेरी फास्ट जो एकदम 2 साल में सीख ले करके। बिकॉज हमारे पास भी कुछ आर्टिकल्स जो मैंने पास में देखे 1 साल में ही उसने इतना सीख लिया था कि जो 3 साल में एक बच्चा सीखता है, लेकिन देयर वर अदर आर्टिकल्स ऑल्सो कि जो 3 साल में भी उतना सीख नहीं पाए करके। तो वेरी करता है हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये टाइमलाइन। तो 2 साल क्रंच करने की वजह से ना ओनस इज शिफ्टिंग टू द स्टूडेंट कि भैया 2 साल में जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखो।
हमारे को खुद के फॉर्म में हमने लगभग जीएसटी में 27 अलग अलग चीजें जो एक बच्चे ने या आर्टिकल ने करनी चाहिए, उसका पूरा एक्सेल शीट हमने बनाया जो गूगल डॉक करके हमने सेव कर दिया है। और हर आर्टिकल के सामने, नाम के सामने हम चीज़ों का ट्रैक करते हैं। इसने GSTR1 भरा है क्या, 3B भरा है क्या, रिफंड लगाया है क्या, 9 किया है क्या, 9C किया है क्या, अपील किया है क्या, रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस किया है क्या। न्यूमरस रेड्स हम हैंडल करते हैं। जैसा लास्ट कपल ऑफ वीक्स में हमने 10 रेड हैंडल किए हैं, तो वो रेड में उसने पार्टिसिपेट किया है क्या, स्टेटमेंट लिए जाते रेड में उसमें पार्टिसिपेट किया है क्या, हाई टेबल पे बैठा है क्या, लेक्चर अटेंड किए है क्या, लेक्चर दिए है क्या। तो इस तरह से हमने अलग अलग 27 चीज़ें जो जीएसटी में एक आर्टिकल कर सकता है वो लिख के रखा है। तो आइडियली 24 महीना इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन पॉसिबल है। बच्चों को भी उनका गेम अभी अप करने का अपॉर्चुनिटी है कि शॉर्ट टाइम में वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जो पहले वाले बच्चे 3 साल में सीखते थे, अभी वो 2 साल में ही सीख सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है उनके पास, तो सर्टनली दे शुड टेक इट। So lastly, how would you like to conclude this session, or also can you give some extra tips like which we missed out through the questions, you think? यस सर्टनली। तो मुझे लग रहा है कि कंक्लूजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं देना चाहूँगा बच्चों को, बहुत बार बच्चे मैंने देखा है आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते हैं एंड आजकल सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द लाइक्स, यानी कि मैं क्या पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे लाइक क्या मिल रहा है। तो राइट नाउ 2 साल के लिए बच्चों ने सोशल मीडिया से छोड़ के कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्किल एक्विजिशन के ऊपर। इसके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ इंस्टेड ऑफ फेसबुक, फेस द बुक, इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन, लिंक विद इन। ये जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना पॉसिबल है कि आप जल्द से जल्द ग्रो कर पाओगे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। और एक बार अगर आपके पास नॉलेज आ गया ना, तो आप मैन ऑफ स्टील या वुमन ऑफ स्टील तो हो, लेकिन वहाँ से आप कन्वर्ट हो जाओगे मैग्नेट में। और एक बार मैग्नेट आप बन गए तो आपको कोई नेटवर्किंग की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद लोग चल के आएंगे। सो यू डोंट हैव टू वॉक टू अदर पीपल, पीपल विल वॉक टूवर्ड्स यू बिकॉज यू हैव बिकम अ मैग्नेट। बराबर है। सो ट्राई टू गैदर एज मेनी स्किल्स एज पॉसिबल, एज मच नॉलेज एज पॉसिबल, सो दैट नेक्स्ट 2 years में यू बिकम द बेस्ट पॉसिबल आर्टिकल इन द कंट्री। बिकॉज बहुत बार ड्रीम रहता है हमारा कि मैं बेस्ट फर्म में ज्वाइन करूँ, बेस्ट सीनियर के पास काम करूँ, बेस्ट असाइनमेंट में काम करूँ। मैं बोलता हूँ उससे एक सिंपल आप ड्रीम रखो जो अचीवेबल है। यू से दैट आई विल बिकम द बेस्ट आर्टिकल इन द कंट्री। मैं टॉप 10 या बिग 4 आर्टिकल रहेगा, यानी कि जो टॉप 4 आर्टिकल रहेंगे इस कंट्री में इस साल के, उसमें मेरा एक नाम रहेगा। ये सिंपल ड्रीम रखो। आप ये मत सोचो कि मुझे बेस्ट सीनियर मिलना चाहिए, आप ये सोचो कि उस सीनियर को उसके लाइफ का बेस्ट जूनियर मिला, ऐसा मैंने काम करना चाहिए। बराबर है। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ये पूरा आपके हाथ में है। यू कैन डू दैट एंड दैट द रीजन। ये अगर आप पाथ फॉलो करोगे तो नो बडी विल स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल इवन ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप टेन्योर। Okay. Thank you, sir. Lastly, a very heartfelt thank you to CA Preetham Mahure, sir, for sharing his expertise and addressing our students' questions. Your valuable guidance has enriched our understanding and extended our knowledge. Thank you, sir, for your time and your knowledge. Yes, thanks Sidhya and thanks Expert Academy for this wonderful opportunity. Thanks.